بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا؟ میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی. ارے شیجی آپ کو اتنی جلدی کون مرنے دے گا؟ اچھا چلے میں آہستہ چلاؤں گا, چلے ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں. حریم, 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 میں دیواروں سے تو نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے, اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتی, مجھ سے بولنا نہیں چاہتی, تو میں کمرے سے باہر چلے جاتا ہوں. کیا بات ہے؟ ایسے نہیں. یہاں آؤ, آن کے بیٹھو. آؤ. بہت آرام سے, ٹھنڈے دل سے, غور سے میری بات سنو. ہاں, تو ناراض ہو ابھی تک صبح کی بات پہ؟ دیکھو حریم, تمہارے ساتھ اسلام آباد نہ جانے پر تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے, مجھے اس کا احساس بھی ہے اور افسوس بھی ہے. I apologize for that. I'm sorry. ہلو 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 ہلو. جناب, لے لیجیے. اس کے جواب میں ایک لفظ ہوتا ہے شکریہ. اگر آپ کہہ دیں گی تو کوئی زیادہ مشقت تو نہیں کرنی پڑے گی. تھینک یو. تھینک یو. تو گویا سرکار ابھی تک ناراض ہے. اتنا تو حق ہے میرا. ہاں صاحب, کیوں نہیں ہے؟ آپ کے حق کی حدود تو بے کنار ہے. مجھے تو اب اپنا ہنی مون کا عرصہ بھی خواب سا لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, موقع ملتے ہی یہ خواب دیکھنے دوبارہ چلیں گے. حریم, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کاروبار, یہ مصروفیت, یہ فیکٹریاں کاش میرے لیے محض ذریعہ ہوتی روزگار کا, تو کتنا اچھا تھا. کمٹمنٹ نہ ہوتا. کینسر کی ڈائگنوز کے بعد میرے مرحوم والد نے مجھ سے 2 باتوں کا عہد کیا تھا.
اول تو یہ کہ میں شہریار کو کبھی بھی زندگی میں باپ کی محرومی کا احساس نہیں ہونے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے کاروبار، ان کے کارخانوں کو اپنی کم عمری اور ناتجربہ کاری کی نظر نہیں کروں گا. میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا جو آپ وضاحت دے رہے ہیں. خیر جی سرکار، بہت ساری باتوں کے لیے الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں. حریم، حریم، میری طرف دیکھو پلیز. یہ بری بات ہے، ایک ظلم ہے. دیکھو، اگر کسی شخص کو اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے نا تو اسے شرمندہ نہیں کرتے. میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جتنا وقت مجھے تمہیں دینا چاہیے اتنا وقت میں تمہیں نہیں دے پایا، مگر یہ میری مجبوری ہے اور اس کا اظہار میں نے کیا. میرا وعدہ ہے اور میری دعا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے اس کمٹمنٹ سے عہدہ برا ہو جاؤں گا ساری زندگی تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہا کروں. شاعری چلیے، بقول آپ کی اگر یہ شاعری ہے تو اس کی ذمہ دار آپ، صرف آپ. اچھا چلیں، آپ چینج کریں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں. کھانا کیا خیال ہے، کھانا باہر چل کے کھاتے؟ چھوڑیں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے. جی جناب، آپ ہمارے ساتھ ہوں تو ساری تھکن دور ہو جائے گی. چلو آپ. کم آن. اور کیسے بھی سن لیا کریں. ارے بھائی، موسم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک فیملی پکنک کر لی جائے. بابا زندہ باد. بھابھی جان، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی جو پنچوں کی رائے. اور پنچوں کی رائے کیا ہے؟ پنچ ایور ریڈی، آپ کے ساتھ. ارے چاچا جان، کس شوقین پنچ سے پوچھا ہے آپ نے؟ اگر آپ انہیں سوتے میں بھی کہیں نا تو یہ اٹھ کر چل دیں گی پکنک پر. شہریار چپ رہو. ہاں میاں جہانگیر، برخوردار، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی مطلب کس سلسلے میں؟
अरे सारी जुलेखा खत्म हो गई और आप पूछ रहे हैं किस सिलसिले में? भाई पिकनिक के बारे में क्या राय है? अब बच्चे जान, as you wish, जैसे सब कह अच्छा, रहे अगर हैं। ये बात है ठीक है। तो भाई तय पाया कि कल सुबह पिकनिक। शागिर भाई सब शीशे की तस्वीरें खींचेंगे। That's it. थैंक यू। कैसे आगे बैठकर सामान कौन लेके आएगा? चलो शरीर की सोच रहा हूँ। चलो हरीम, are you all right? तुम्हारी तबीयत? Excuse me जी, आपके पास मिसेस हरीम खान की रिपोर्ट। This is report. Thank you. मेरे ख्याल में ये टेक्निकल चीज होती है। No, it's all right. It's positive. Positive? Yes. Thank you. नाजुक, भाई जल्दी आओ। अरे भाई आज बहुत सारा खाना पकाना, खैरात करना है। हाँ हाँ, ये खुशी का दिन है। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही है। अरे मेरा बच्चा, बात ही खुशी की है, तुम चाचू बनने वाले हो। वाकई? हाँ। याहू! हाँ, जल्दी जाओ भाई, जल्दी जाओ। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझसे मत पूछो बेटे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आका भाई किधर है? वो अपने कमरे में है। तो गोया आप बहुत खुश हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? मेरे ख्याल में आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे ख्याल में तो मैं खुशी का साइन बोर्ड बना हूं। खुशी मेरे चेहरे से बह रही है। जी। ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरा मम्मी को देख रहा हूँ। मामी? अपने वलीअहद की मम्मी को। वलीअहद। और अगर क्या, बेटी भी तो खुदा की रहमत होती है। अब बोले आप। हाँ देखो रूबा, मोची वाला काम जो बनवाया था वो आ गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है।
बेड पे उठ भी बहुत रहा है। और ये देखो, वेरी एलिगेंट। इसके साथ तुम मैचिंग लेके आना। सिल्क। हाँ सिल्क ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बातें हो रही हैं जनाब? क्यों बताएं? हाँ हाँ ना बताएं। भाई खवातीन के मौज़ूआत बताए बगैर भी तो बूझे जा सकते हैं। अच्छा तो बूझे। या तो कपड़ों और जूतों की बातें हो रही होंगी या कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की, वरना अजीज रिश्तेदारों की गीबतें हो रही होंगी। ब्यूटी पार्लर पर जाने की या तो मेरे बारे में तो कंफर्म बातें हो रही होंगी। जो बातें भी कर रहे थे अच्छी अच्छी कर रहे थे। आप लोगों की बिरादरी की तरह नहीं कि कुछ करने को नहीं है तो तखरीबी कार्रवाइयां शुरू कर दें। जी हाँ, अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों, इन सब की हिबत करने से ज्यादा तामीरी कार्रवाई और क्या हो सकती है दुनिया में। अच्छा छोड़ें, एक काम था आपसे। आ गई ना अपने किसी मतलब पर। प्लीज। हाँ बोलो बोलो। वो शीजी के टेलर को मैंने कपड़े दिए थे तो वो पिक कर रहे हैं, प्लीज ले चलें मुझे। आइए शीजी। जी नहीं, आपकी बर्क रफ्तारी की वजह से आपके साथ मेरे कहीं आने जाने पर पाबंदी लग चुकी है। अच्छा जी जनाब। सोच लें शीजी, नुकसान में रहेंगी आप। हाँ मुझे पता। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, उसको लेके जाओ। मैं भी चलूंगी। ओह नो, आओ भाई। ओके, थैंक यू फॉर सिफारिश शीजी। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय। भुनी भुनी बोटियाँ, अरे भुनी भुनी बोटियाँ मजे से मैं खाऊंगा, हो सका तो गर्मा गर्म नान भी खाऊंगा। खाने पीने के अलावा भी कोई बात कर लिया कर। ये भी पता है शायर क्या कह गया? क्या कह गया तेरा शायर? मुझे क्या पता क्या कह गया भाई, क्या गया? हाँ याद आया, शायर कह गया है कि खाने पीने के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है। अरे जा बदनीयत कहीं का। खाने पीने के सिवा ये BBC लंदन है। पेड़ घुमा के स्टेशन बदल दिया, पागल कहीं। अब बैठ के खबरें सुनो। मिस्टर मलिक, आपने ये फैक्ट्स तो देख लिया है ना? इसका मतलब है कि हमें अगले माह के इख्तिताम तक ये टारगेट मुकम्मल करना है। हाँ मुझे मालूम है सर, इंशाल्लाह वी विल मीट इट। गुड। अच्छा, व्हाट हैपेंड टू द सैंपल्स आई आस्क्ड यू फॉर? सैंपल्स तैयार है सर। तैयार है? गुड। फिर भिजवा दीजिए मेरे पास, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। राइट सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच। ओके। यस जी मैं बोल रही हूँ। जनाब अली, मिजाज बखैर। जरा पूछिए तो मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। हाजी साहब आपकी मर्जी, आप जो खुशखबरी चाहे सुना दें। वैसे ईमान की बात यह है कि हम सिर्फ एक खुशखबरी के इंतजार में हैं। उस खुशखबरी के लिए आपको भी काफी अरसा इंतजार करना पड़ेगा। दिल जान से करेंगे साहब। अच्छा खैर, इस वक्त की खुशखबरी ये है कि निशात के यहाँ बेटा हुआ है। मुबारक, यानी आप खाला जान बन गई। हाँ, खालू जान को भी बहुत बहुत मुबारक हो। यार ये बात है। चलिए, थैंक यू। अफसार भाई ने हॉस्पिटल से सबसे पहले मुझे फोन किया। हाँ साहब, क्यों नहीं, आप ठहरी ख्वाहिर निस्बती, भला हमसे उनका क्या रिश्ता जो हमें फोन करते। हरी में एक सेकंड होल्ड करना, मेरे ख्याल में दूसरे टेलीफोन पे कॉल है। जस्ट अ सेकंड। हेलो अफसार, ओ वंडरफुल, मुबारक हो। मुझे अभी हरीम ने टेलीफोन पे बताया। एक सेकंड। हरीम लीजिए, एक होल्ड कीजिएगा, मगर वो अपने उन हजरत का फोन आ गया है। अच्छा, आप आज जल्दी घर आ जाइएगा क्योंकि हम निशात को देखने चलेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, बस रो चश्म जनाब, बस रो चश्म। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब आई एम वेरी हैप्पी अफसर। अच्छा ये बताएं, डैडी जान मन के कैसा लग रहा है? ओ आई एम श्योर। निशात कैसी? दोनों खैर से? ठीक है, बिल्कुल। मैं और
करीम हाजिर हो जाएंगे? गुड, आई एम हैप्पी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब ये कैसा है ये बताइए पहले आप। बहुत प्यारा है। किस पे है? तुम पे है? शुक्र है अब्बा पे नहीं। जी अच्छा हाँ निशा, तुम बताओ, हाउ आर यू फीलिंग है? प्राउड मदर? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। बताओ। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं? हाँ बना, मैं बाबा। भाई ये क्या मैं कर रही हैं आप? अपना नाम बताइए। शहरयार प्लीज। शहरयार? भाई आपका नाम शहरयार कैसे हो सकता है? कम ऑन, बहुत हो चुका मजाक, अब सीरियस हो जाओ वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई तुमसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। क्या 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 क्या? मैं फोन बंद कर रही हूँ। आपकी इतला के लिहाज है कि फोन पेश की इतला के बगैर भी बंद किया जा सकता है। ओके। हेलो भाई, फोन बंद कर देने से पहले ये तो बता देती कि फोन किस लिए किया था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सॉरी, नो मालिक साहब। आप ही मुझे बताइए कि आपने ये मुझसे क्यों पूछा? आपको इतने साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, आपको मेरे मुतालिक इस कंपनी की पॉलिसी के मुतालिक अच्छी तरह मालूम है। लेकिन सर मुझे भी कंपनी के नुकसान का खौफ है, इसलिए मैंने आपको ना चाहते हुए भी ये राय दी है। नहीं मालिक साहब, मुझे नुकसान बर्दाश्त है, मगर ये रास्ता कबूल नहीं है। आई एम सॉरी सर, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। गुड। अच्छा अब आप जाइए और मुझे आइंदा हफ्ते की शेड्यूल बता दीजिएगा। राइट? ऑलराइट सर, मैं भी आपको कॉल करूँ। थैंक यू सर। हेलो। जनाब अली, कैसी तबीयत है सरकार की? ठीक ठाक। क्या कर रही हैं? अभी तो आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि इससे पहले क्या कर रही थी? इससे पहले कुछ भी नहीं, बोर हो रही थी। क्यों खैरियत? तो अपने शहरियार कहाँ है? पता नहीं, काफी देर से कहीं गए हुए हैं हजरत। हाँ। अच्छा, अब ऐसा कीजिएगा, शाम को बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइएगा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। रियली? सोच लें। आप शर्मिंदा मत क्या करें प्लीज।
اوکے ہاں انشاءاللہ. हेलो मिस हरी. कैसी हैं आप? फाइन थैंक यू. आप तो जनाब शादी के बाद हम लोगों को बिल्कुल भूल गए. जी नहीं, बिल्कुल नहीं भूली हूँ. मैं तो अक्सर आप सबको याद करती हूँ. अच्छा जी हाँ. ये देख, मीट माय हस्बैंड जहांगीर. मिसेस आरिफ मेरे साथ ऑफिस में हुआ. बड़ी खुशी हुई आपसे. थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ कैसे? यहाँ दरअसल कराची में छोटी बहन की शादी है. बस शादी अटेंड करने आ गई. बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू थैंक यू. ऑफिस में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है जहांगीर, लेकिन आपको बहुत याद करते हैं. रियली मैं भी आप सबको बहुत याद करती हूँ. आप कभी हमारे यहाँ आए ना. इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी. हाँ यू मस्ट. और ऑफिस में सबको मेरा सलाम कहिएगा. अच्छा जी. अच्छा आपकी बेटी है? जी जी बहुत प्यारी है माशाल्लाह. ओके खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़. हरीम तो अपने ससुराल में ऐसे मगन हुई कि दिनों मैके को याद नहीं करती. भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है. अरे अच्छा कैसे नहीं होगा. एक एक टाका मैं दिल से लगा रही हूँ. वैसे पता नहीं अल्लाह ताला नवासा देता है या नवासी. भाई जो अल्लाह दे दे. हम तो अल्लाह ताला की हर नेमत खुश होकर लेने वालों में हैं. वैसे मैं कुर्ते की बात नहीं कर रहा था. तो फिर मैं ये कह रहा था कि बेटी अपनी ससुराल में खुश रहे, चाहे मैके को याद करे या न करे. आपकी तो हर मुंतक निराली होती है. आपका हुस्न ज़न है, वरना मन आनम के मन दानम. अच्छा तो आप ये समझ रहे कि मैंने आपकी तारीफ की थी. नहीं नहीं, आप भला ऐसी फाश गलती कर सकते. अच्छा ऐसे नाज़िर देखना किसका फोन है. हेलो जी. जी हाँ बैठी हुई है. क्या बात है, बहुत फोन मैं भी देती हूँ फोन. तुम्हारा वक्त आने तो तुम भी ऐसे ही फोन करोगे. दुल्हन बेगम हाँ फोन है. हेलो. हेलो. हाँ जनाब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे. जी जनाब, हंसने के मौके कम ही मिलते हैं, तो आपकी बात सुनेंगे भी और फिर शायद हंसेंगे भी. जनाब मैं शहरयार से गिटार बजाना सीख रही हूँ. वैसे पता है क्या, कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर शहरयार ना होता इस घर में तो मैं कितनी बोर हो जाती. खैर तुम्हारी तबीयत कैसी है? नहीं तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे बाजार जाना है शॉपिंग करने. मैं शहरयार को ले जाऊं? नहीं शहरयार के साथ नहीं, वो बहुत तेज गाड़ी चलाता. मैं खुद तुम्हें लेके चलूंगा. इससे अच्छा क्या हो सकता है. अच्छा आप शाम को तैयार रहिएगा, हम रात बाहर खाना खाएंगे. ओके खुदा हाफिज़. खुदा. क्या कह रहे थे? क्यों बताऊं? ओहो, अब हमसे भी राजदारी बरतेंगी. जनाब ला 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 ला. हैं?
ये तू क्या घात लगाए बैठा है? 4 दिन आधी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले। हर वक्त खाने पीने के चक्कर में मत रहा कर। मेरी बात सुनो, अपने चक्कर में तो तुम मुझे रहने नहीं देती और मेरे चक्कर में तुम आ नहीं रही हो। अब किसी ना किसी चक्कर में तो मुझे रहना है। क्या क्या बक रहा है तू? अपने यहाँ एक्शन रिवीले का सिस्टम है ही नहीं। ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? झाइल 2-4 जमातें पढ़ लेती तो ये नहीं होता। ये क्या होता है? अरे तू तो जैसा बड़ा आलिम फाजिल है। वो तो है। कहीं से 4 दिन आधी दुनिया है, खा ले पी ले जुड़ा कुछ खा ले पी ले जहांगीर बेटा, जी अम्मी जान। मैंने तुमसे अपने लिए कभी वक्त नहीं मांगा। बहू की फरमाइश की थी, देर से सही पूरी कर दी तुमने। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, दुल्हन भी तुम्हारे साथ है। इसे तुम्हारी मोहब्बत तवज्जो की जरूरत है। अपनी मसरूफियात कुछ कम करो और दुल्हन को भी वक्त दिया करो। बस अम्मी जान, थोड़े दिन की बात है। शेरा की तालीम मुकम्मल हो जाए फिर सही मानों में मुझे रिलीफ मिल जाएगा। खुशखबरी सुन ली शीजिए आपने। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप और आका भाई बैठकर चैन की बांसुरी बजाएंगे और ये बंदा खाकसार आपको रश्क से देखा करेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे बेटे, हम आपके देखने के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज घर में ला के बिठा देंगे। ओह, तो गया उस बेचारी का काम भी सिर्फ बैठना होगा और इंतजार करना। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अरे कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हारे घर में भी ये रौनक हो जाएगी। अब साथ बता रहे थे कि जहांगीर भाई बहुत खुश है। बहुत खुश है, इतना ख्याल रखते हैं मेरा। दिन में कई मर्तबा फैक्ट्री से फोन करके हाल पूछते हैं। गोया तुम दोनों आजकल हॉटलाइन पर हो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो कहीं भी नहीं जा सकता। क्या क्या क्या? तुम मुझे काली बिल्ली कह रहे हो? चीते? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम अपनी तारीफ खुद कर रही हो। आपने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं है, आप तो कुछ कहते ही नहीं मुझे। रुबा, अस्सलाम वालेकुम। दिल रुबा, अब ये भी नाज रही है, मेरा मतलब है अभी भी। शीजी, मैं जब से आई हूँ शहरियार मुझे काली बिल्ली कह रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। शहरियार, बहुत बुरी बात है, कोई शर्म आनी चाहिए। शर्म? कसम ले लीजिए शीजी, जो मैंने ऐसा कहा। आपका मतलब तो यही था? आपका मतलब तो यही था। अरे तुम्हारी अकल में सीधा और सही मतलब आता ही कब है? हमेशा गलत मतलब निकालती हो। या अल्लाह, ऑल राइट। शहरियार, बहुत बुरी बात है। तुम अकेली है? बहुत बोर हो रही थी घर में। फराज अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी पे गया तो मैंने बाबा से कहा मुझे प्लीज यहाँ ड्रॉप कर दें। अच्छा और यूं काली बिल्ली मेरे रास्ते काटना मेरे यहाँ पहुंची। देखे शीजी, फिर मुझे काली बिल्ली कह रहा है। शहरियार, तुम कहीं जा रहे थे ना? हाँ, मैं जा रहा था। इसको लेके जाओ, इसको आइसक्रीम खिला के लाओ। चलो चले। आओ, गोश्त की दुकान से तुम्हें चिचड़े खिलाऊं। खुद ही खा लेना, मैं नहीं जा रही शीजी इसके साथ। हवा मेरे पीछे पड़ा रहता है। हियर आज तो आका भाई की खुदा खैर ही करे। चुप रहो, बनाओ मत। अरे साहब, बनाया तो ऊपर वाले ने आपको खूब है, अब भला और क्या कोई बनाएगा। पको मत। कसम ले लीजिए, आज तो आप गजब ढा रही हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे अम्मी जी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे तू तो मेरी जान है, मेरे बच्चे, तुझे इतना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई साहब, आइए। आइए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठिए। हाँ, बैठ जाइए। अरे भाई, ये हमारे दूल्हा मियाँ कहाँ हैं? जी बस पहुंचने वाले हैं। अरे ये लो। आओ भाई, आओ। लीजिए, दूसरे दूल्हा मियाँ आ गए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा, बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू वेरी अरे मच। भाई, दुल्हन जहांगीर मियाँ को फोन तो कर देती कि जल्दी घर आ जाएं। खाने पे भी तो जाना है। हरगिज़ नहीं अम्मी, हरगिज़ नहीं।
आका भाई को सरप्राइज देना है। ओहो भाई, ये सरप्राइज आजकल के दौर में अजीब चीज निकली है। जिया साहब, सरप्राइज सरप्राइज सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। कैसा सरप्राइज भाई? खाने के मामले में सरप्राइज कैसा? खाना लगाइए और हम शुरू हो जाते हैं। मेरा बगैर इसके हो जाएगा। अच्छा साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप शादी वाले दिन भी खाना नहीं भूले थे। याददाश्त बहुत अच्छी है। जब मैंने देखा कि मेरी प्लेट में 2 बोटियां कम है तो मौसूफ लगे हुए। अच्छा, ये भी याद है आपको? अरे साहब, बहुत कुछ याद है। अब क्या क्या कहें आपसे। बहरहाल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। दुल्हन, काफी देर हो गई, तुम जहांगीर को फोन कर दो। हाँ, मेरा ख्याल है भाभी जान ठीक कह रही हैं। अब फोन कर देना चाहिए उन्हें। बस चाचा जान 5 मिनट और देख लें, फिर फोन कर लेते हैं। अरे भाई, ये देर पर एक मुझे माचिस पे लिखा हुआ लतीफा याद आ गया। हुआ ये कि 2 बच्चे स्कूल देर से पहुंचे तो उनके मास्टर साहब ने पूछा, बेटे सलीम तुम स्कूल देर से क्यों आए? तो उसने कहा, सर मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। अच्छा बेटे, चलो तुम्हारी तो अठन्नी गुम हो गई थी, लेकिन अकबर तुम देर से क्यों आए? कहने लगा, मैं अठन्नी पे पाँव रखे हुए खड़ा था। चले, माचिस के बहुत जो आपने स्पेसिफिकेशंस दी थी, मैंने उसी तरह से काम किया है। देखें जी, क्वालिटी, पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन जो है वो सारा कुछ एज पर सैंपल होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। दैट्स गुड। नाइस मीटिंग। थैंक यू जी। आई थिंक वी शुड ऑर्डर सम कॉफी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जहांगीर, कहाँ हैं आप? आपके इतने करीब कि आपकी खुशबू सूंघ सकता हूँ। अभी तक घर क्यों नहीं आए? बस एक बिजनेस मीटिंग में फंस गया था। जहांगीर, आज भी? हाँ, क्यों? आज कोई खास बात? भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह, I'm sorry. आपको पता है, हम सब लोग शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? शहरयार आपको सरप्राइज देना चाहता था और मैं इस खुशफहमी में थी कि आपको याद होगा। अच्छा हरीम, ऐसा करो कि तुम आंखें बंद करो और समझो कि मैं पलक झपकते पहुंच रहा हूं। ओके, खुदा हाफिज। अब तो पेट में दर्द हो गया, तुमने हंसा हंसा के तौबा इलाही। नहीं, इसमें हंसाने की कोई बात नहीं। असल में मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, और कोई बात नहीं है। हरीम, टेलीफोन हो गया? दुल्हन, क्या हुआ भाई? अम्मी जान, बस जहांगीर आ रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। जहांगीर आ रहे हैं, दैट्स गुड। खाना कहाँ खाएंगे? खाना? अरे साहब, खाना बस खाने की कहा बात। आपकी जबान से जो खाने का आइटम निकलता है ना, इससे दिल खुश हो जाता है। भाई तौबा इलाही, शादी नहीं, तुम्हारे मियाँ कैसे हैं? बस भूख लगती है। कुछ समझाओ तुम, क्या हो गया? थोड़ी देर कुछ करा लो। हाँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। ओके, चलिए साहब, मैं खामोश नहीं रहता। चलिए, मैं खामोश हूँ। चलिए, आप लोग बातें अभी बोले अम्मी, आप कुछ कह रही हैं, प्लीज। भाभी जान जी, बहुत देर हो गई है, दोबारा फोन करवा दीजिए। हाँ, दुल्हन जाओ भाई, जहांगीर से कहो कि जल्दी आ भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर रेस्टोरेंट भी तो बंद लीजिए, फोन खुद ही आ गया। चलिए साहब, टेलीफोन सुनिए और उसके बाद खाने। अरे खाना तो ऐसा जी? होगा कि आप देखिए। जी हाँ, ये जहांगीर साहब का घर है। मैं चिकन कैरी, लिवर कैरी, फिश पसंद है। इसमें क्या बात है भाई? खाने के मामले में तो मैं समझता हूँ कि शहरयार, किसका फोन था? मुझे दिखाओ। हेलो हेलो हेलो, फोन था, बोलो ना। शहरयार,
आप जहांगीर साहब के कौन हैं? जी मैं जहांगीर का चचा हूं। आई एम वेरी सॉरी।